So today is 1st June. Monday. And we were doing about tRNA. tRNA is called as transfer RNA या soluble RNA या adapter molecule. अडेप्टर क्यों बोलते हैं बेटा? अडेप्टर हम कहाँ पे लगाते हैं? जैसे हम स्विच और कंप्यूटर के बीच में एक अडेप्टर होता है. When computer cannot be attached to the switch directly, then they put an adapter in between, which connect one device with another device. That is called as adapter. इसको adapter क्यों कहते हैं? ये किसको अटैच करता है? ये कौन से डिवाइसेस को अटैच करता है? It attaches amino acids with mRNA. Amino acids because amino acids cannot directly attach with mRNA. Therefore, some adapter is required, and that adapter is tRNA. tRNA it combines with amino acids, take these amino acids to mRNA, and then amino acids when gets attached with mRNA, then tRNA gets separated. There are there are more than 20 amino acids हैं. अभी हम जेनेटिक कोड्स के बारे में बताएंगे. 20 अमीनो एसिड्स है, 64 जेनेटिक कोडोन्स है. तो कम से कम 64 तो tRNA होने चाहिए. बट हमने क्या देखा है? देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ tRNA. ठीक है, एटलीस्ट देयर शुड बी 61, 64 तो नहीं हम कहेंगे, मैं बताऊंगी 61 क्यों. देयर शुड बी एटलीस्ट 61 tRNAs. But actually there are more than 100 types of tRNAs. कुछ modifications है ना. हमने बहुत ज्यादा तो नहीं डिटेलिंग में जाना, बट इतना नंबर हमें पता होना चाहिए. 2D structure of tRNA proposed by Holly, and it is clover leaf-like. 3D structure was proposed by Cluck, and it is L-shape. It is the smallest RNA, therefore it is soluble in water. That's why it is called as soluble RNA. Transfer RNA because it transfers amino acids from cytoplasm to mRNA. This is 2D structure, clover leaf-like structure. This is 5' end, this is 3' end. यहाँ पे है C, यहाँ पे है, this is G, I'm sorry, this is G, this is C, T, A, O, H, N. तो हम यहाँ पे
P प्राइम एंड यहाँ पे G है, ठीक है, इसका मतलब बॉन्ड यहाँ पे ये बना हुआ, राइट, because it is coiled over itself. Single stranded tRNA is coiled over itself. Therefore, base pairing occurs in some regions. यहाँ पे बेस पेयरिंग, ये जो है दिस इज साइड आर्म, ये जो लूप है this is called as anticodone loop. This is anticodone loop, and the three central, it has 7 base pairs, not pairs, it has 7 nucleotides या 7 bases, and the central 3 forms anticodone. अभी हम कोडोन बताएंगे, फिर उससे आपको पता चलेगा इट इज एंटीकोडोन, इट इज complementary to codone, it is complementary to codone. Then next हम आ जाते हैं बेटा ये दो लूप्स है, दिस इज DHU loop, diahydrouracil. It binds with enzyme amino acyl synthetase. It binds with enzyme amino acyl synthetase. ये जो लूप है TZIC, ये था डायाहाइड्रोयूरेसिल, ये जो है दिस इज स्यूडोयूरेसिल, ये जो U के बीच में हमने डाला है दिस इज स्यूडोयूरेसिल, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड बेस है स्यूडोयूरेसिल. TZIC लूप binds with ribosome during protein synthesis. It binds with ribosome. और ये जो है CCAOH, it binds with specific amino acid. It binds with specific amino acid. और ये याद रखना है बेटा कि डिफरेंट टीआरएनए, जो डिफरेंट टीआरएनए है उन सब में बाकी सब सेम है, ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट एंटीकोडोन, दे हैव डिफरेंट, यहाँ पे स्टार डाल के पॉइंट लिखो, different tRNAs differ in the composition of anticodones. Next है, there are specific tRNAs, which binds with specific amino acid. मिथियोनिन का टीआरएनए अलग होगा, फिनाइलएलेनिन का टीआरएनए अलग होगा, ठीक है, इस तरह से अलग अलग टीआरएनए है. देयर आर स्पेसिफिक टीआरएनएस फॉर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड.
and there are specific enzymes also. There are specific enzymes also. For example, हम करेंगे मिथियोनाइल tRNA. मिथियोनाइल tRNA. This is 5 prime end, this is 3 prime end, CCA OH तो था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या अटैच हो गया, OH खत्म हो गया. This is फॉर्माइल मिथियोनिन, या आप फॉर्माइल मत लिखो, दिस इज मिथियोनिन. आगे चल के बताऊंगी फॉर्माइलेटेड क्या है. यहाँ पे मिथियोनिन अटैच हो गया. कैसे पता चला? यहाँ पे एंटीकोडोन है UAC. जहां पे एंटीकोडोन UAC होगा वो हमेशा मिथियोनिन से बाइंड करेगा. ये एंटीकोडोन, और यहाँ पे एंजाइम क्या बाइंड हुआ, दिस एंजाइम इज मिथियोनाइल synthetase. This tRNA binds with the enzyme methionine synthetase. ये तो राइबोसोम से है, या कोई स्पेसिफिक राइबोसोम्स नहीं, सभी राइबोसोम्स एक जैसे होते हैं. ये बाइंड किया मिथियोनिन से. मिथियोनिन और ये एंजाइम किसने डिसाइड किया? ये डिसाइड किया एंटीकोडोन. दिस इज एंटीकोडोन. एंटीकोडोन फॉर मिथियोनिन. तो यहाँ पे लिख लो, एंटीकोडोन ऑन tRNA decides the type of amino acyl synthetase and the amino acid to be attached with tRNA. ठीक है जी, बनाओ ये फटाफट से और फिर मुझे बताओ जब हो जाएगा. मैम वो ए के साथ अटैच हुआ है मिथियोनिन. हाँ बेटा, ए के साथ CCA, फिर ए के साथ अटैच हुआ है मिथियोनिन. ये अमीनो एसिड है मिथियोनिन. और मैम ये तभी अटैच होगा जब एंटीकोडोन UAC ही होगा. UAC ही होगा. ठीक है, और किसी जगह बेटा अमीनो एसिड और कहीं नहीं आता. अमीनो एसिड हमेशा इसी एंड पे 3 प्राइम CCA एंड पे ही अटैच होगा. मैम उसका ऑर्डर भी यही होना चाहिए, मतलब UAC, मतलब ACU वगैरह नहीं हो सकता? बेटा इसका UAC ही होगा. ओके मैम.
मैम फिर इसका मतलब अगर 20 अमीनो एसिड्स है फिर वो एंटीकोडोन्स में टोटल 20 होंगे। नहीं बेटा, वो मैं अभी आगे चल के बताऊंगी, अभी बताते हैं। ओके यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये कर दूं रब इधर वाला। यस यस मैम। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना, इट इज ये करो, क्योंकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना, CAU, ये करो ठीक। मैं बताऊंगी कैसे, अभी हम करते हैं कोडोन्स के बारे में, तब हम करेंगे। CAU, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट tRNA। नेक्स्ट हम आ जाते हैं RNA, राइबोसोमल RNA। synthesized by nucleolar DNA except 5SRR। अभी हम इसकी टाइप्स बताएंगे। इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो सब कुछ ही साइटोप्लाज्म में हो रहा। टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNA। प्रोकैरियोट्स में 23S rRNA, 5 पहले आ जाइए, 16S rRNA एंड 5S rRNA। ये 3 टाइप्स की है। मैं S बताती हूँ अभी क्या है। इसके बाद इन यूकैरियोट्स 28S rRNA, 18S rRNA, 5.8S rRNA and 5S rRNA. These are the different types of rRNA. Okay. In prokaryotes, all type of rRNAs are formed in cytoplasm, whereas in eukaryotes, these 3 are formed by nucleolar DNA, nucleolus में बनता है, and this one by chromosomal DNA. 5S rRNA is formed by chromosomal DNA. So what is S here? S क्या है? Swedberg unit, which measures sedimentation coefficient. इसके वेट पे डिपेंड करता है
कि कितनी जल्दी जब हम सेडिमेंट करते हैं तो कितनी जल्दी ये बैठता है, कितनी जल्दी सेडिमेंट हो जाता है। जो हैवी होगा वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा, तो ये जल्दी सेडिमेंट होंगे, फिर बाद में, ठीक है ना। So this is SS Swedberg unit which measures sedimentation coefficient. Is it okay? ठीक है। तो अगर हम बात करें कि RRNA जो है it is the component of ribosomes. तो ribosomes जो है formed of RRNA plus proteins in the nucleolus. Ribosomes are formed of RRNA and proteins in the nucleolus. So ribosomes are synthesized in the nucleolus. ठीक है जी। मैम ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना फिर से। राइबोसोम्स जो है किस किस के बने होते हैं? प्रोटीन्स के और राइबोसोमल आरएनए के। और राइबोसोम्स बनेंगे कहाँ पे? न्यूक्लियोलस में। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, दोबारा से बताती हूँ। आरआरएनए synthesized in nucleolus, फिर बात आ जाती है इन यूकैरियोट्स। प्रोटीन्स synthesized in cytoplasm but enters in nucleolus to nuclear pores. न्यूक्लियोलस में प्रोटीन्स भी पहुंच गए, combines with RRNA to form a ribosomal subunit. और ये राइबोसोमल सबयूनिट्स come out of nucleolus and nucleus. पहले न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियस में, टू न्यूक्लियर पोर्स। फिर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे राइबोसोमल सबयूनिट्स। कैसे आएंगे? टू न्यूक्लियर पोर्स। तो बेटा अगर हम राइबोसोम्स देखें तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, this is smaller subunit and this dome shaped is larger subunit. This is smaller subunit and this is larger subunit. प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स होते हैं? 70s। ये 50s का बना है और ये 30s का बना है। ये नहीं कहना इंडिविजुअली ये 50 एंड 30 है, जब कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ वाटर लूज हुआ, कुछ लूज होता है जब कंबाइन होता है, तो वेट कम हो जाता है, तो इट इज 70s।
ठीक है जी। तो 50s सब मैम ये यूनिट combine- जो है, हाँ जी बेटा, मैम ये Mg2+ की वजह से कंबाइन करते हाँ हैं? वो अभी बताऊंगी मैं, अभी बताएंगे हम उसको। ओके। जो 50s सब यूनिट है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 23s rRNA, 23s rRNA प्लस 5s rRNA, 23s rRNA प्लस 5s rRNA प्लस 32 प्रोटीन। इतने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, 32 प्रोटीन्स। और स्मॉलर सब यूनिट, it is formed of 16s rRNA plus 21 proteins plus 21 proteins। ठीक है जी। इसी तरह से यूकैरियोटिक राइबोसोम, नेक्स्ट आ जाते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ये है 80s, 60s प्लस 40s, 60s प्लस 40s। 60s में क्या है, 28s rRNA प्लस 5.8s rRNA प्लस 5s rRNA प्लस 50 प्रोटीन्स प्लस 50 प्रोटीन। जबकि 40s जो है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 18s rRNA प्लस 31 प्रोटीन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जैसे 5s RNA क्रोमोसोमल डीएनए से फॉर्म होता है, तो हम्म। प्रोटीन्स के साथ वो भी एंटर करेगा न्यूक्लियोलस के हाँ, अंदर? वो भी न्यूक्लियोलस में एंटर कर जाएगा यस प्रोटीन्स के साथ। ओके। ठीक है जी, हो गया बेटा। डन मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। द 5 प्राइम कैप रीजन, the 5 prime cap region of mRNA joins with 3 prime end of smaller subunit of ribosomes। 3 prime end of, हम कह सकते हैं 3 prime end of 16s या फिर 18s RRNA। द कैप रीजन, मैं दोबारा से, ये अगर रेड पेन है तो उससे लिख लेना, द 5 प्राइम कैप ऑफ mRNA joins with 3 prime end of 16s या 18s,
16s or 18s rRNA of smaller subunit of ribosome. Smaller subunit of ribosome. नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखो, ये भी रेड पेन से लिख लेना. द कैप रीजन ऑफ mRNA. द कैप रीजन ऑफ mRNA and tail region of mRNA. Tail region of mRNA protects the mRNA from enzymatic degradation. Enzymatic degradation. और नेक्स्ट पॉइंट है द टेल रीजन ऑफ mRNA. The tail region of mRNA helps in detaching of ribosomes. Detaching of ribosomes from mRNA. तो कैप जो है वो अटैचिंग में काम करता है, टेल है वो डिटैचिंग में काम करता है. मैम एक बार रिपीट करना टेल वाला पॉइंट. The tail part of mRNA helps in detaching of mRNA from ribosomes. Detaching of mRNA from ribosomes. Is it okay? So cap region, मैंने क्या बताया, cap region helps in attaching of ribosomes, whereas tail region helps in detaching of ribosomes. Next point लिखिए, एक और point लिखिए. The two ribosomal subunits. The two ribosomal subunits remain dissociated. अलग अलग रहते हैं. Remain dissociated from each other. Remain dissociated from each other except during protein synthesis. Except during protein synthesis, when the two subunits gets associated with each other, with the help of magnesium ions. 0.001 molar concentration of magnesium ion. During protein synthesis, the two ribosomal subunits ये इकट्ठे इस तरह तभी होते हैं जब प्रोटीन्स बन रहे हैं, with the help of magnesium ions in small concentration. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. Many ribosomes join with the same mRNA for synthesizing many polypeptides of same type. Many polypeptides of same type. एक ही टाइप की जो पॉलीपेप्टाइड है उनका बहुत सारा नंबर बन रहा है, क्योंकि mRNA तो एक ही है जिसपे इंफॉर्मेशन है, राइबोसोम्स बहुत सारे. Many polypeptides of the same type.
So the structure formed by mRNA and many ribosomes is called as पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। मैम ये टेल से कैसे अटैच हुए? और टेल तो एंड पे है। अभी ये बेटा ये लिखो, सिर्फ ये भी हम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, है ना, उसमें पता चलेगा आपको। Can you repeat the last point? The same mRNA joined with many ribosomes is called as polysome और polyribosome। क्योंकि आपको ये फाइनल दिख रहा है, बना कैसे वो हम प्रोटीन सिंथेसिस में बताएंगे। पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ठीक है जी। सो दिस इज RRNA। और फिर एक स्टार डाल के पॉइंट लिखना, RRNA is the most abundant RNA found in the cell। RRNA is the most abundant RNA found in the cell। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्मॉल न्यूक्लियर RNA, SNRNA। It is SNRNA, small nuclear RNA। मैम ये किसकी टाइप है? RNA की RNA की टाइप है। इन टाइप के तो मेन मैंने आपको बताए थे, mRNA, tRNA, RRNA। उसके बाद मैंने बताया था एक जीनोमिक RNA होता है, फिर दो छोटे छोटे RNA होते हैं, SNRNA एंड scRNA। So this is SNRNA, small nuclear RNA। SNRNA जो है बेटा, it is formed in nucleus, बनना तो न्यूक्लियस नहीं है। और ये बेटा only in eukaryotes, SNRNA, scRNA in eukaryotes only, formed in nucleus, function in nucleus, helps in, क्या फंक्शन है? स्प्लाइसिंग। helps in splicing of hnRNA, then processing of tRNA, splicing of heterogeneous RNA, then splicing of tRNA, RRNA, I'm sorry, splicing of processing of ribosomal RNA। नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। ये तो बनेगा ही न्यूक्लियस में, और तो कहाँ बनना ही नहीं। फंक्शन इन साइटोप्लाज्म, फंक्शन इन साइटोप्लाज्म। और क्या फंक्शन है बेटा स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA का? इट हेल्प्स इन joining of ribosomes
with endoplasmic reticulum. It helps in joining of ribosomes with endoplasmic reticulum. और दोबारा से लिख लेना कि these two found only in, रेड पेन से लिख लेना, only in eukaryotes. प्रोकैरियोट्स में नहीं है. उसके बाद बेटा ये टाइप नहीं है, बट एक बॉक्स में लिख लेना कि कैटालिटिक फंक्शन ऑफ आरएनए. फंक्शन ऑफ आरएनए. ठीक है, तो इसमें लिखो some of the enzymes are not proteins, but are formed of rRNA, ribosomal RNA. Some of the enzymes are not formed of proteins, but are formed of ribosomal RNA. कौन कौन से एंजाइम्स है? वन इज राइबोजाइम, डिस्कवर्ड बाय चेक एटाल. एटाल का मतलब होता है कोवर्कर्स. अनदर इज राइबोन्यूक्लियेज पी. Another RNA enzyme is ribonuclease P, discovered by Altman et al. और तीसरा है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. डिस्कवर्ड बाय Noller et al. मैम वो राइबोन्यूक्लियस P. पी. नाम ही है बेटा इसका, राइबोन्यूक्लियस पी. ओके. ठीक है, सो ये तीन एंजाइम्स ऐसे है बेटा जो किसके बने हुए हैं? दीज आर फॉर्म्ड ऑफ आरएनए. ठीक है बेटा, हो गया. यस मैम. तो अब हमने कहा कि डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए. मेनली तो ये तीन टाइप के आरएनए है विच टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, इसमें से जो डीएनए, जो जीन्स एमआरएनए बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्ट्रॉन्स या स्ट्रक्चरल जीन्स. Do you get me? ठीक है, so the part of the gene which forms one protein, one polypeptide through mRNA is called as one cistron. A structural gene can be monocistronic, it can be polycistronic. It has information for one polypeptide, then it is called as monocistronic. If a structural gene has information for more than one polypeptides, it is called as polycistronic. But both monocistronic and polycistronic genes
दे फॉर्म प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स थ्रू मैसेंजर आरएनए. So they transfer information to mRNA, then mRNA form the polypeptides of the protein. Is it okay? तो information जो डीएनए ने आरएनए को दी, डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स है, आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स है, तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पे दे पास द इंफॉर्मेशन. इज इट ओके? ठीक है. तो अब आगे जो है वो आ जाता है जेनेटिक कोड. ध्यान से पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे. जेनेटिक कोड्स का क्या मतलब है? अब डीएनए ने इंफॉर्मेशन दी आरएनए को बाय कॉम्प्लीमेंट्री रूल. बेसिस जो है कॉम्प्लीमेंट्री, इजी हो गया. बट आरएनए ने जो इंफॉर्मेशन दी प्रोटीन्स को, या हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड. एक मिनट बेटा. हाँ जी बेटा. तो डीएनए ने बनाया आरएनए, आरएनए ने बनाया पॉलीपेप्टाइड. तो हमने कहा डीएनए ने आरएनए बनाया तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल हो गया. पॉलीपेप्टाइड क्या है बच्चे? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. एंड यू नो, ये लिखना नहीं, समझना है पहले कि नो complementary rule for nitrogenous bases and amino acids. कोई इनमें कोई ऐसा तो रिलेशन ही नहीं है. ठीक है. तो फिर ये देखा गया कि हमारे पास 4 तरह के बेसिस है और कम से कम 20 अमीनो एसिड्स है. तो इसका मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे which codes for, which has the information for the specific amino acid. ठीक है. तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने, और फिर वो हमने ये कहा कि आरएनए के पास इंफॉर्मेशन जो है वो कोडेड फॉर्म में है, और जब पॉलीपेप्टाइड बनता है तो वो कोडेड इंफॉर्मेशन इट इज डीकोडेड. बट वो कोड्स क्या है, ये आगे साइंटिस्ट ने पता किया कि if one base या one nucleotide has one code for a specific amino acid, then there will be maximum of 4 codes या कोडोन्स. 4 ही कोडोन्स होंगे और वो 4 ही अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करेंगे. हमारे पास तो कम से कम 20 अमीनो एसिड्स है. अब क्या करें? तो वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं. अब हम देखें कि नेक्स्ट आ जाता है, सेकंड है कि इफ 4 कोडॉन्स कहते हैं. जैसे एडेनिन कंटेनिंग है ना, एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, अगर हम कहते हैं कि एक कोडोन है, ये एडेनिन कंटेनिंग है, इट कोड्स फॉर मिथियोनिन. साइटोसिन कंटेनिंग है, इट कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड. ठीक है. इसी तरह गुआनिन है, ये किसी के लिए, और यूरिडिन वाला किसी और के लिए. तो 4 ही अमीनो एसिड्स को पहचान पाएंगे ये तो, जबकि पहचानना कितनों को है? कम से कम 20 अमीनो एसिड्स को. ठीक है प्रभजोत के नहीं? हाँ जी. ठीक है.
तो अब इसलिए ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। बट यहाँ पे लिख लो, बट लिखना नहीं अभी, बट देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, देयरफॉर, मैम नहीं समझ आया। मैं बताती हूँ, देयरफॉर हमें ये एक बार फिर से बता दो। मैं बताती हूँ, जेनेटिक कोडोन्स कैन नॉट बी सिंगलेट। हमारे पास जो है 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अगर हमारे पास ये mRNA है, A, G, C, A, U, G, G, T, C. Let us say adenine containing nucleotide codes for methionine. Guanine containing codes for, let us say, leucine. Cytosine for isoleucine, ये अमीनो एसिड्स है. Uridine codes for tryptophan, let us say. तो ये हमारे पास तो सिर्फ 4 टाइप के बेसिस हुए. अगर एक एक जो नाइट्रोजिनस बेस है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है तो 4 बेसिस मैक्सिमम 4 अमीनो एसिड्स को ही पहचानेंगे, कोड करेंगे. बट हमारे पास तो 20 अमीनो एसिड्स है. ठीक है, दोबारा से मैं बात कर रही हूँ बेटा कि डीएनए और आरएनए में तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल है और काम चला गया. जब आरएनए ने पॉलीपेप्टाइड्स बनाई, पॉलीपेप्टाइड्स में 20 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं. हो सकता है किसी पॉलीपेप्टाइड में 5 ही अमीनो एसिड्स हो, मतलब, बट वो काफी बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू. ठीक है ना. बट तो ओवरऑल तो 20 अमीनो एसिड्स है. उन 20 अमीनो एसिड्स को कौन पहचानेगा कि इस पॉलीपेप्टाइड में कौन से अमीनो एसिड्स आने चाहिए? वो कौन पहचानता है? एमआरएनए पहचानता है. बट अगर एक एक अमीनो एसिड, एक एक जो है नाइट्रोजिनस बेस एक एक अमीनो एसिड को पहचानेगा तो मैक्सिमम 4 ही अमीनो एसिड पहचाने जाएंगे. बाकी के 16 अमीनो एसिड्स कहाँ जाएंगे? उनको कौन पहचानेगा? उनको पॉलीपेप्टाइड में कौन लेके आएगा? तो इसलिए अगर हम ये कहते हैं तो हमने ये कहा कि जेनेटिक कोडोन सिंगलेट नहीं हो सकते. एक एक जो है, एक एक नाइट्रोजिनस बेस एक एक कोडोन नहीं एक्ट कर सकता. अभी आप आगे समझेंगे फिर और पता चलेगा. देखो दोबारा, इफ जेनेटिक कोडोन, एक मिनट बेटा, इफ जेनेटिक कोडोन इज डबलेट, AC वन कोडोन, ठीक है, UA another कोडोन, CG another कोडोन. ठीक है, इस तरह से अगर दो दो के हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? टोटल कॉम्बिनेशंस 4 कोडोन्स है, डबलेट 2 के कॉम्बिनेशन में, तो देयर विल बी 16 कोडोन्स. बट देयर आर, अगेन हम बात करते हैं 20 अमीनो एसिड. उसके बाद तीसरा, इफ जेनेटिक कोडोन इज ट्रिपलेट, 3 जो है, UAC, GUA, AUG, इस तरह से, तो टोटल कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मूला होता है मैथ्स का, टोटल कॉम्बिनेशंस 4 टाइप के बेसिस है, 3 के कॉम्बिनेशंस में 64 कोडोन्स. और फिर आगे चल के हमने, ये तो थ्योरेटिकल था, बट आगे चल के हमने देखा कि एक्चुअल में there are, the codon is triplet, that is UAC, CAG, AGG, UUU,
These are the codons. पहले ये लिखो, मैं फिर आपको एक्सपेरिमेंटली भी बताती हूँ. Write down this first. दोबारा से एक बार कि जेनेटिक कोडोन्स क्या है. जेनेटिक कोडोन्स इज द कोडेड इंफॉर्मेशन ऑन द आरएनए, ऑन द एमआरएनए, स्पेसिफिक लिखो, ऑन द एमआरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ particular sequence of amino acids, particular sequence of amino acids in a polypeptide. In a polypeptide. That is genetic codon. ठीक है प्रभजोत, हो गया बेटा? मैम सर अगर फर्स्ट पॉइंट देखें then there will be maximum of 4 amino acids नहीं आएगा वहाँ पर. मैंने क्या लिख दिया बेटा? वो भी 4 कोडोन्स होंगे which codes for maximum of 4 amino acids. ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं. There will be maximum of 4 codons. आगे लिख लेना which codes maximum for 4 amino acids. Which codes maximum of 4 amino acids. तो मतलब जितने कोडोन्स उतने अमीनो एसिड. पूरे सेल में है ना? यस मैम. पूरे सेल में जितने कोडोन्स है उतने अमीनो एसिड्स. बट अभी हम और भी कुछ देखेंगे. मैम वन कोडोन में 1 अमीनो एसिड का होगा इंफॉर्मेशन की. हाँ, 1 कोडोन हैज इंफॉर्मेशन फॉर 1 स्पेसिफिक अमीनो एसिड. ये भी लिख लेना. 1 कोडोन हैज इंफॉर्मेशन फॉर 1 स्पेसिफिक अमीनो एसिड. मैम वन कोडोन आगे क्या? 1 codon has information for 1 specific amino acid. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. हरगोबिंद खुराना इंडियन साइंटिस्ट था, बट उसने काम कहाँ पे किया? अमेरिका में. अच्छा, पहले एक, इससे पहले हरगोबिंद खुराना से पहले एक लिखिए, जॉर्ज गैमो. जॉर्ज GEORGE, जॉर्ज गैमो. मैम थर्ड पॉइंट के बाद मेंशन करना है. हाँ जी, हाँ जी. जॉर्ज गैमो, GAMOW, ए फिजिस्ट. पहले कंप्लीट कर ले, मेरे 2 पॉइंट्स रहते थे. बस 1 मिनट, बस ये एक लाइन लिख लो जरा, फिर लिख. Okay. जॉर्ज गैमो, GAMOW, फिजिक्स पढ़ता था ये. ए फिजिस्ट, PHYSIST, PHYSICIST, फिजिस्ट. discovered और suggested, हम कहेंगे, और suggested that the genetic codon should be the combination of bases. Genetic codon should be that. ये चीजें जो मैंने बताई है, ये किसने देखा? गैमो ने सजेस्ट किया. That genetic codon should be the combination of bases. He further suggested मैम कॉम्बिनेशन ऑफ bases, BASES.
he further suggested that for coding 20 amino acids, for coding 20 amino acids, the genetic codon should be triplet in nature. Should be triplet in nature. उसने बेटा, मेरा मतलब ये है, उसको नहीं पता था ज्यादा कुछ, उसने सिर्फ अपनी इन्हीं, हमें तो चलो ये इस तरह से हमने देख लिया, उसने किया था, हमने आपको पढ़ा दिया, इजी सा लग रहा है, बट उसने ये सोचा और उसने ये कहा कि 20 अमीनो एसिड्स है। बहुत बोल्ड डिसीजन उसने स्टेटमेंट दी थी कि सिंगलेट हो नहीं सकता, क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स है, जेनेटिक कोडोन कैन नॉट बी सिंगलेट, डबलेट भी नहीं हो सकता, तो जेनेटिक कोडोन शुड बी ट्रिपलेट। जबकि उस टाइम लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा कि 20 अमीनो एसिड्स है, 64 कोडोन्स क्या करने हैं, बट आगे चल के पता चला कि नहीं, ही वाज राइट। ठीक है, तो इट वाज सजेस्टेड बाय, ये जो 3 पॉइंट्स थे ये किसने सजेस्ट किए थे, ये किए थे गैमो ने, जॉर्ज गैमो ने सजेस्ट किए थे दैट जेनेटिक कोडोन इज ट्रिपलेट इन नेचर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट सब टॉपिक लिख लीजिए, प्रूफ फॉर द ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोडोन। प्रूफ फॉर द ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोडोन। तो इसमें पहले आ जाता है हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना, उसने क्या किया बेटा, उसने एक टेक्निक डेवलप की जिससे आरएनए विद स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो बन जाए। कैसे? उसने पहले क्या, हरगोबिंद खुराना ने, उसने होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर ऑफ एमआरएनए ये बनाया। इसका क्या मतलब है, होमोपॉलीमर में उसने क्या बनाया, ए ए ए ए मतलब ए ए ए ए ए ए ए, उसने आरएनए बनाया सिंपल। पहले तो उसने ये आरएनए बनाया, यहाँ पे ऑब्वियसली एक ही टाइप के अमीनो एसिड्स बनेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर बनता है तो सेम अमीनो एसिड्स। उसके बाद उसने क्या किया, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी, और उसने क्या देखा, क्योंकि नोन नंबर था, नोन आरएनए था, कि इट इज कोडिंग फॉर 2 अमीनो एसिड, अमीनो एसिड 1 फिर 2 1 2, इस तरह। तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, बट फिर भी हरगोबिंद खुराना ने क्या किया, हरगोबिंद खुराना डेवलप्ड अ टेक्निक for synthesizing RNA, with defined combination of bases, with defined combination of bases. He synthesized homopolymers and copolymers. ये होमोपॉलीमर है एंड कोपॉलीमर। He synthesized homopolymer and copolymer. उसके बाद नेरनबर्ग,
ये भी रेड पेन से लिखना। मार्शल नेहरनबर्ग, Nerenberg and Mithai. Marshall Nerenberg and Mithai, they decoded या deciphered. Deciphered का क्या मतलब होता है? Decoded. Decoded various genetic codons by synthesizing template free synthetic RNA of known sequence with the help of Twyer-Ochoa enzyme. With the help of Twyer-Ochoa enzyme. ये एंजाइम टेम्पलेट फ्री जो है, मतलब डीएनए टेम्पलेट नहीं चाहिए, इस एंजाइम की हेल्प से वो न्यूक्लियोटाइड्स को अपने हिसाब से जोड़ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल उसने किया AUG 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 इस तरह उसने mRNA बना दिया, लेट अस से इफ जेनेटिक कोडोन यहाँ पे if genetic codon is singlet, तो यहाँ पे क्या होना था कि A codes for amino acid 1, U codes for amino acid 2, G codes for amino acid 3. तो जो पॉलीपेप्टाइड बनती 1 2 3 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 3, ये होना चाहिए था, मतलब मिथियोनिन आइसोल्यूसिन ल्यूसीन, मिथियोनिन आइसोल्यूसिन ल्यूसीन, मिथियोनिन आइसोल्यूसिन ल्यूसीन, इस तरह से अमीनो एसिड्स आने थे, बट ये उसको नहीं मिला। इफ genetic codon is doublet, then AU codes for amino acid 1, फिर GA codes for amino acid 2, फिर UG codes for amino acid 3. AU GA UG इस तरह से फिर 3 अलग डिफरेंट अमीनो एसिड्स होने थे, ठीक है ना, यहाँ तक। फिर AU GA UG फिर AU GA UG, इस तरह से 3 अमीनो एसिड्स सब भी होते। तो पॉलीपेप्टाइड जो होता
1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2, बट ये भी नहीं उससे मिला. So what he got? उसने क्या देखा कि if genetic codon is triplet, then there is AUG. It codes for amino acid. And actual observation क्या हुई बेटा कि जो पॉलीपेप्टाइड बना वो क्या था? दिस इज मिथियोनिन, 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 होमोपॉलीपेप्टाइड, मिथियोनिन, मिथियोनिन, इस तरह से. सो इट इज ए होमोपॉलीमर ऑफ मिथियोनिन. So from this they concluded that genetic codon is triplet in nature. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, फिर उन्होंने क्या किया, एक तो उन्हें ये पता चला कि जेनेटिक कोडोन्स जो है वो ट्रिपलेट है. दूसरा है, नेक्स्ट आ जाता है, दे फर्स्ट फॉर्म्ड या फॉर्मुलेटेड वेरियस कॉम्बिनेशंस. They first formulated various combinations, different combinations, जो 64 codons थे वो बनाए, and then artificially synthesized RNAs of known sequences. इनकी क्या हुई? ट्रांसलेशन हुई. जेनेटिक कोडोन्स आर देन डीकोडेड. फिर हमें पता चला, जब नोन डाले तो पता चला कि जेनेटिक, अच्छा ये जो है इसके लिए है, ये जो है इसके लिए. इज इट राइट? लिखो पहले. तो अब बेटा एक सीक्वेंस याद रखना है. U C A G. ठीक है. एक्सेस 64 आपने बना लेने, आपने तो बढ़िया से बनाओ. हर में U C A G, U C A G, U C A G. अब इन्हीं के हर एक बॉक्स में हमने 4-4 बनाने हैं. U C C C C, A A A A, G G G G. यहाँ भी
अब बनाओ फटाफट से। बस ये याद रखना है UCAG। ठीक है जी। उसके बाद फिर अब क्या करना है, UCAG UCAG। UCAG UCAG। अब कर लो। और अब हर बॉक्स में UCAG 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 UCAG। ये अब अगर देखेंगे तो ये 64 कोडोन्स है। इसमें बेटा जो 3 कोडोन्स है, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया एंड उल्लू गया आया। ठीक है, याद रहेगा, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया एंड उल्लू गया आया। ये जो 3 कोडोन्स है, these are stop codons या these are nonsense codons। नॉनसेंस का क्या मतलब कि इनकी कोई सेंस नहीं बनती। क्यों नहीं सेंस बनती? एज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड एंड स्टॉप कोडोन। पहली बात। दूसरा है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। stops at any one of the 3 stop codons। कोई भी एक स्टॉप कोडोन जो है, अगर जहां पर भी mRNA में आ गया, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस रुक जाएगी। ठीक है जी। मैम प्लीज वेट। हाँ,
AUG, देखो देयर आर 61 फंक्शनल कोडोन, 3 तो स्टॉप कोडोन्स हो गए, 61 फंक्शनल कोडोन्स हो गए। इसका मतलब है विच कोड्स फॉर 20 अमीनो एसिड्स, इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन्स है, ठीक है। बट मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन 2 अमीनो एसिड्स है जिनके लिए एक एक कोडोन ही है। AUG and UGG, AUG for methionine and UGG for tryptophan. They code for methionine and tryptophan. So these are the 2 amino acids which have single codon only. बाकी सबके बहुत बहुत कोडोन्स हैं। मैम वो सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करना। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, जब हम mRNA में प्रोटीन बन रहा है, लेट अस से एक जगह आ गया UAA, वहां पे जाके पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस फर्दर बंद हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड इतनी ही रह गई क्योंकि आगे स्टॉप कोडोन आ गया, उसने कहा बस अब आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो बेटा अब आज का आपका होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी की बुक निकालना और इन कोडोन्स के मीनिंग निकालना। मीनिंग का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल दिस 2 कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, ये जो 6 है ये कोड्स फॉर ल्यूसीन, ये जो 3 है these codes for isoleucine, ये जो 4 है these codes for विलाइन। ठीक है, बाकी आप देखना, ठीक है। और ये जो है ये आपने याद करके आने हैं, अगली बार हम इसमें से पहले क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस पे। मैम ये पूरे सीक्वेंस ही याद करने वाले जैसे ल्यूसीन के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसी तरह सीक्वेंस में मतलब कोड्स आ सकते हैं, ट्रिप्टोफैन का कोडोन क्या, टायरोसिन का कोडोन क्या, मिथियोनिन का क्या है, फिनाइलएलेनिन का कौन सा कोडोन है, ठीक है। और एक बार जब करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और आप मैक्सिमम में देखोगे कि यहाँ पे अगर विलाइन का देखोगे तो सिर्फ ये आपको GU याद रखना है, पीछे कुछ भी हो। GU क्या कोड करता है, विलाइन करता है, बाकी पीछे कुछ भी हो, इट हार्डली मैटर। इज इट ओके? ठीक है, यस मैम। ढूंढ के लाना है कि कैसे याद किया, क्या किया, और हम इसको परसों डिस्कस करेंगे, इसमें से हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, एंड आई होप इस हफ्ते हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम प्रोटीन, फिर जो है नया उसके बाद ऑक्रोन हो जाएगा, बस खत्म है। ठीक है।